In previous video, students, we discussed about the Boyle's law. Now, today we discuss Charles law and Gay-Lucas law. First of all, what is Charles law? Charles law is the relationship between the temperature and the volume of the gas. Charles and Gay-Lucas performed several experiments on gases independently to improve upon hot air balloons technology. Their investigation shows that for a fixed mass of a gas at constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreasing on cooling. They found that for each degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1 upon May 273.15 of the original volume of the gas at 0 degrees Celsius. Thus, if volume of the gas at 0 degrees Celsius and at T degrees Celsius are V0 and Vt respectively, then Vt is equal to V0 plus T upon May 273.15 V0. Vt equals to V0 bracket 1 plus T upon May 273.15. Then Vt equals to V0 bracket 273.15 plus T upon May 273.15. At this stage, we define a new scale of temperature such that T degree Celsius on new scale is given by T equals to 273.15 plus T and 0 degree Celsius will be given by called the T naught is equal to 273.15. This new temperature scale called the Kelvin temperature scale or absolute temperature scale. Thus, 0 degree Celsius on the Celsius scale is equal to 273.15 Kelvin at the absolute scale. Note the degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale, that is Kelvin scale. Kelvin scale of temperature is also called thermodynamic scale of temperature and used in all scientists' work. Thus, we add 273 to the Celsius temperature to obtain temperature at Kelvin. If we write T is equal to 273.15 plus T and T naught is equal to 273.15 in the equation, we get a relation Vt is equal to V naught bracket T small t upon May T naught. Vt upon May V naught is equal to T upon May T naught. Thus, we can write the general equation for the following. V2 upon May V1 is equal to T2 upon May T1 or V1 upon May T1 is equal to V2 upon May T2. V upon May T is equals to constant, that is equal to K, or V is equal to K to T. The value of constant K2 is determined by the pressure of the gas, its amount and the unit in which volume V is expressed. From the mathematical expression for Charles law, which states that pressure remains constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. उसने आपको क्या कहा है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग? चार्ल्स ने और गे ल्यूकस ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, किसके बेस पे? हॉट एयर बैलून की टेक्नोलॉजी के बेस पे. और जो उनकी डिस्कवरी रही वो क्या रही, किसके बेस पे रही? कांस्टेंट प्रेशर के बेस पे रही और फिक्स्ड मास का मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट ले रहा है वो और प्रेशर भी कांस्टेंट. तो जब प्रेशर कांस्टेंट लिया और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिए, तो जब वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था गैस की,
तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा था, या फिर ये कह सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही थी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही थी। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं गैस का तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही है। जितना डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उतना ही डिग्री आपको किस में चेंज मिल रहा था, वॉल्यूम में चेंज मिल रहा था। फिर उसने ये कहा कि सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनल वॉल्यूम जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, V0 है, और T टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो VT है। तो रिलेशन क्या दिया उसने, फिर उसके बाद VT क्या था, वो वॉल्यूम जो T टेम्परेचर पे थी, तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन में 273.15 और मल्टीप्लाई में V0, क्योंकि उसने क्या कहा है कि हर एक डिग्री के साथ इतनी गैस जो है इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम उसकी इतनी इंक्रीज कर रही है, कितनी, 1 अपॉन में 273.15। तो T जितना भी टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 273.15, क्योंकि ईच डिग्री में इतनी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो मैं T से मल्टीप्लाई कर दूंगी उस टेम्परेचर से, कितना टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है, और हर एक डिग्री में जितनी वॉल्यूम इंक्रीज की है वो ले ली, और V0 इनिशियल वॉल्यूम जो मैंने ली थी। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगी मेरी, जो वॉल्यूम मेरी इंक्रीज करेगी VT टाइम में और V0। तो VT इज इक्वल टू V0 कॉमन आ गया दोनों में से, बचा क्या, 1 प्लस T अपॉन में 273.15 बच गया आपके पास। तो आप जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 273.15 ऊपर आ जाएगा प्लस T और अपन में 273.15 आ गया। अब जो 273.15 प्लस T है, अगर मैं इसको T कंसीडर कर दूं, T कंसीडर कर दिया, और 273.15 है उसको मैंने T0 कंसीडर कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, VT अपॉन में V0 इज इक्वल टू T अपॉन में T0। और अगर मैं फर्दर इस इक्वेशन को आपको V1 V2 की फॉर्म में लिखूंगी तो VT क्या है, V2 है मेरा, और ये V1 है, इनिशियल वॉल्यूम है, और ये फाइनल टेम्परेचर, और ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर। तो V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1, और इसको रीअरेंज किया तो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, और V अपॉन में T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज K2, V इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाई में T। यही मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इक्वल्स टू T और K2, और K2 इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है अब आपको यहाँ पे, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है दोनों में, उसने ये कहा है ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P और कांस्टेंट N, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। तो अब जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगी इन दोनों की, तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, ये आपका वॉल्यूम कंसीडर कर लिया मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टेम्परेचर कंसीडर कर लिया। ये मेरा P1 P2 P3 P4 अलग अलग प्रेशर पे मैंने करके देखा, तो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही थी वैसे वैसे मेरी वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी, और जैसे जैसे मेरी टेम्परेचर में डिक्रीज कर रही थी वैसे वैसे मेरी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही थी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे क्या कांस्टेंट लिया था आपने, प्रेशर कांस्टेंट लिया था। जहाँ भी आपको आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया, मतलब कांस्टेंट की बात कर रहा है, बार मीन्स प्रेशर कांस्टेंट। और अगर कहीं आपको आइसोथर्मल मिलेगा, थर्मल मीन्स टेम्परेचर और आइसो मीन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और हियर इज आइसोबार, दैट इज बार मीन्स प्रेशर और आइसो मीन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। दिस इज योर
Charles' law. Now enough for today. Have a nice day.